Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone for coming today for this special evening program. Thank you for your love, for your kindness, for your regular service to Radha Madan Mohan ji, to Srila Prabhupada, and being regularly in association of wonderful, glorious devotees here who are helping you, guiding you, inspiring you, empowering you. That's really wonderful. तो मैं सोच रहा था कि आज क्या किया जाए, so I'll just talk something about association, the value of association, saintly association, and but primarily we would focus on question answer because youths have got many questions. So then we will have good amount of session on questions. ठीक है जी, question and answer. Alright, Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalta Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So I thought today we can talk something about the value of association. All of you have come to Krishna consciousness because one day you got association. Association is something which can make you. Association is something which can break you. It's all about association. If a water droplet falls in a mud, it becomes mud. When a water droplet falls on the lotus leaf, it becomes dew. If it falls on the inside the oyster, it becomes pearl. It's about association. जैसे लाइट हो, लाइट अगर ब्लू, अगर डायमंड है, डायमंड को मैंने ब्लू लाइट में रखा तो कौन सी लाइट निकलेगी? ब्लू लाइट. ग्रीन में रखा तो ग्रीन लाइट, रेड में रखा रेड लाइट. So we reflect a kind of value system. It depends on the kind of association which we have. Like I see many people, they youngsters especially, coming from very simple background. When they come to places like Mumbai, Delhi, they are very passionate cities. Those desires which they were not having earlier, now they start exhibiting those desires. Why? Because of association actually. Do you like love stories? नहीं, साधु लोग हैं ना. See, I am not a sadhu, so that's why I like love stories. So I tell you one love story. It's the love story between honeybee and stool worm. Hey, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? How can honeybee in love with stool worm? Love is blind. तो दोनों का प्यार हो गया आपस में. ठीक है जी, अब प्यार तो हो गया. So honeybee would always think कि मेरा ससुराल कितनी गंदी जगह पे होगा. So often she would say, come on, let's find out a multi-story apartment. Somewhere we should live in Hyderabad. Somewhere we should find a place. पर स्टूल वॉर्म कहता था, पता नहीं क्यों बोलती रहती है ऐसे मेरे को. कितनी अच्छी जगह है ये. Such a nice fragrance. मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट है मेरा यहाँ पर. ऊपर से नई स्टोरी ऐड होती रहती है हर रोज. So nice. पर हनी भी सोचती थी पता नहीं कहाँ पर मेरे को क्या, कितना गंदी बदबूदार जगह है. But stool worm कहते पर क्या खराब है? So nice. Fresh pizzas come every day from the top. So अच्छा तो है सब. यार किससे प्यार कर लिया मैंने, क्या है बिना. So एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी माशूका की आवाज़ को सुनता है, उसकी बात को सुनता है. And that is 15th of February. Sorry, 14th of February. So
तो 14 फरवरी से जानते क्या होता है? दीपावली होती है। सो 14 फरवरी के दिन ये जो मधुमक्खी थी, दिस हनी बी टोल्ड द स्टूल वॉर्म, ये जानू टुडे इज वैलेंटाइंस डे, लेट्स गो टू अ प्लेस एंड हैव सम फन। अब स्टूल वॉर्म ने कहा पता नहीं कहाँ लेकर के जाएगी, मैं मिस करूंगा इस जगह को जहाँ पर मैं हूँ। कहता है ठीक है मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूँ। सो ही वेंट इनसाइड और अंदर जाकर के उसने थोड़ा स्टूल लिया, अपने नाक के अंदर डाली कि इस खुशबू को मैं मिस ना करूँगा। चलो लेट्स गो नाउ, लेट्स गो ऑन अ डेट। सो हनी बी ने उसको पिक किया और फिर स्टूल वॉर्म को लेके गई फ्लावर गार्डन से। वहाँ पे जाके फूलों के ऊपर रखा, कहाँ सूंघो, उसने सूंघा, सेम है। हनी बी ने कहा कि सेम कैसे हो सकता है? कहाँ ये फूलों की फ्रेग्रेंस एंड वेयर देयर इज बैड स्मेल ऑफ स्टूल। दोबारा सूंघा, सेम है। मधुमक्खी ने झांक के देखा है, अरे गंदा आदमी नाक के अंदर स्टूल ठूस करके आया, बहुत गंदा आदमी, इसमें शादी करने वाली हूँ। तो उसने बोला ओके डार्लिंग, लेट्स गो टू स्विमिंग पूल, लेट्स स्विम टुगेदर, हैव सम फन। कहता ओके ठीक है। तो स्टूल वॉर्म है, दिमाग तो है नहीं उसका, उसको उठा के लेके गया, पूरा दौड़ डाला, नाक से उसका स्टूल निकल गया। उसको वापस लेकर के आए फ्लावर गार्डन से। कहता अब सूंघा, अरे बेहोश हो गया वो, अरे इतनी अच्छी खुशबू, वाह सो नाइस। फिर उसको उठाया मधुमक्खी ने, उठो, उठाया उसको, जीभ बाहर निकालो। उसने जीभ बाहर निकाली, थोड़ा सा हनी लिया, उसकी जीभ पे हनी रखा, अरे फिर बेहोश हो गया। फिर उसको उठाया, अरे क्यों, कैसा लगा? अरे तो बहुत ही बढ़िया जगह है। तो हाँ, तो बोलता रहता है फ्रेश पिज्जा गिरते हैं ऊपर से, बांगड़ू बकवास आदमी, ये देख ये है असली। एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी की। तो ये लव स्टोरी हमारी भी है। पीपल इन दिस वर्ल्ड दे आर लाइक स्टूल वॉर्म एंड दे थिंक वी आर वेरी हैप्पी, वी आर गुड, नाइस। डिवोटीज रिक्वेस्ट है, आइए ना कभी मंदिर, आइए ना, राधा मदन मोहन जी का मंदिर आइए ना। अरे बिजी है ना, अच्छा है या सेटल है। या अगर मान लो किसी दिन आ भी जाते हैं ऑन सम स्पेशल डेज, तो स्टूल भर करके आते हैं, यानी कि दे हैव देयर ओन मिसकंसेप्शंस। अरे इस्कॉन क्या है, ये विदेशी संस्था है, पैसा बाहर भेजती है, इट्स एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा नाक में ढूंढ करके आते हैं वो। पर जब हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा के पानी में घुल जाते हैं, सारा स्टूल निकल जाता है। अरे वाह। And then they become devotees and then they happily lived thereafter. अब ये जो लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी के अंदर हनी बी कंटिन्यू टू बी अ हनी बी एंड स्टूल वॉर्म कंटिन्यू टू बी अ स्टूल वॉर्म. बट इन आवर लाइफ we see that stool worm becomes honey bee. That means a materialist becomes a spiritualist. That's the beauty of the whole thing. So it becomes like a chain reaction. One person preaching another person becomes a devotee, another devotee, and in this way it is a chain reaction. Like there was one devotee, he was in Atlanta, वहाँ के जेल में था. Somehow he got one copy of Srimad Bhagavad Gita there, and he started reading Srimad Bhagavad Gita. उसने फिर वहाँ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया, आई रिक्वेस्ट यू, कैन आई गेट श्रीमद भागवतम ऑल्सो फ्रॉम दिस हरे कृष्णा वाला पीपल. सो अथॉरिटीज दे ऑल्सो कोऑपरेटेड. फाइनली गॉट श्रीमद भागवतम. उसने वहाँ भागवतम पूरा किया, चैतन्य चरितामृत पूरा किया, प्रभुपाद लीलामृत पूरा किया. जेल के अंदर इतने साल पढ़े, क्या करेंगे, पढ़ो. नाइस. फिर उसने सोचा दिस इज सो गुड, इन द जेल पीपल हैव टाइम, दे कैन स्टडी, दे कैन हियर, दे कैन चैंट हरे कृष्णा. And then he started jail ministry, ISKCON jail ministry. There is one ministry which preaches exclusively inside the jails. और यहाँ पर इंडिया के अंदर कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़ा, उस पर काले रंग की धारी. यूएस में कपड़ा इज ऑरेंज कलर. बढ़िया है यार, कपड़ा ही ब्रह्मचारी वाला पहले दे दिया इन लोगों ने हमको. जेल का कपड़ा है तो बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस. So then he started this ISKCON jail preaching, and then many hundreds and thousands of people have become devotees through this jail preaching. So can you see the chain reaction?
that a stool worm becomes a honeybee, and then this honeybee makes other stool worms into honeybee, and in this way chain reaction, more and more and more and more. So this is the love story of the devotees and the materialist. That how a devotee makes somebody a devotee. Right? Like we also became devotees because we got somebody's association. Association can happen through anything. Sometimes it is in the form of a book. Like there was one person, he was about to commit suicide. मैंने कहा क्या करेंगे जी के यार, लाइफ में ना कोई रंग है ना ढंग है, जिंदगी कटी पतंग है, मर जाओ यार. लेकिन उसको लगता था ये ना आत्महत्या करूंगा, पेन होगा, मरूंगा, मरते वक्त दर्द होता है ना, तो कोई मरने का ऐसा तरीका ढूंढते जिसमें दर्द कम हो, which is less painful. I should find out a way. So I should find out a way which is less painful. So then he found out that one way is a very painless way of committing suicide, which is to die yourself suffocating with carbon monoxide. ठीक है जी, ओके. उसने क्या किया, गाड़ी के सारे शीशे बंद किए, कार्बन मोनोक्साइड का पंप ऑन कर दिया. अब उसमें से ना कार्बन मोनोक्साइड बड़े धीरे धीरे निकल रही थी. यार बड़ा बोर हो रहा हूँ यार, मरने से पहले ना बोर होना पड़ेगा, कार्बन निकले वो, जल्दी निकलो, जल्दी मरे. और उसका टाइम पास नहीं हो रहा था. कहते यार कार्बन मोनोक्साइड बड़े धीरे धीरे निकल रही है, कब मेरा दम घुटेगा, कब मैं मरूंगा. तब एक डिवोटी आया, उसने खिड़की में नॉक किया, नॉक नॉक नॉक. सर भगवद गीता. उसने कहा चलो किताब ही ले लेते हैं भाई, टाइम पास हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे और क्या अच्छा रहेगा. उसने कहा ठीक है ठीक है. कितने का है? मुझे $5. उसने $100 दिए. कहता है कीप द चेंज. मेरे को तो मरना ही है, मैं क्या करूँगा पैसे का, कीप द चेंज. बंद कर दिया. एंड देन ही स्टार्टेड रीडिंग करते 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 ही रियलाइज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. उसने कार्बन मोनोक्साइड का पंप ऑफ किया, खिड़की के शीशे नीचे किए, तुरंत गया फुल टाइम ज्वाइन कर गया. तो इसको मरना क्या, उसको आगे पीछे तो है नहीं ना कि मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, तो मरने वाला था. राइट, दिस इज लाइक अ पुनर्जन्म. सो एसोसिएशन कैन हैपन दिस वे. Association. Like there was one lady, she was very stubborn. I will not become devotee. So हमारे मायापुर मंदिर में आई, वहाँ पर डिवोटीज ने उसको अच्छे से प्रीचिंग भी की. नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, आई विल नॉट चैंट हरे कृष्णा. तो भक्तों को पता लगा कि ना श्रील प्रभुपाद इज कमिंग टू मायापुर. तो प्रभुपाद जी आए, तो प्रभुपाद जी बताया श्रील प्रभुपाद देयर इज वन अमेरिकन लेडी, उसने डिसाइड किया आई विल नॉट चैंट हरे कृष्णा. प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, उसको लेकर के आओ. प्रभुपाद ने कहा सो हाउ आर यू डूइंग, थोड़ा सा हाल चाल वगैरह उसको पूछा, हाल चाल पूछा. उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने बोला ओके वुड लाइक टू हैव सम रसगुल्ला प्रसाद. व्हाट इज दैट? तो उसको ना रसगुल्ला दिया. रसगुल्ला खाया. उसने कहती है अरे स्वामी जी ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ खाया ही नहीं. प्रभुपाद ने कहा डू यू वांट मोर? ऑफ कोर्स. प्रभुपाद ने बोला राधा माधव का 2 रसगुल्ला और लेकर गया. 2 रसगुल्ले और लेकर गया, वो भी चट कर गई. उसका 4 रसगुल्ले और लेकर गया, वो भी खा गई. वो प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा? स्वामी जी दिस इज सो टेस्टी, सो स्वीट, सो डिलिशियस. प्रभुपाद ने कहा यू लाइक्ड इट वेरी मच? यस स्वामी जी आई लाइक्ड इट सो मच. प्रभुपाद ने कहा दिस रसगुल्ला इज अ बंगाली स्वीट, इट इज वेरी स्वीट, यू लाइक्ड इट? यस. प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग हरे कृष्णा इज इवन स्वीटर देन दिस, वुड यू लाइक टू चैंट हरे कृष्णा? यस स्वामी जी, यस आई विल चैंट हरे कृष्णा. So association can happen also through prasadam. Yes, association. Association can come even by some negative association. ऐसा कैसे? एक बार ऐसा हुआ, there was one boy, उसने सोचा हुआ था ये ना मैं शादी करूंगा ना, I'll marry one devotee girl. She should be a Hare Krishna devotee. उससे शादी करूंगा मैं. पेरेंट्स बोलते नहीं, हम लोग अग्रवाल हैं, तुमको अग्रवालों में ही शादी करनी होगी. नहीं, वो माता पिता बोलते हैं ना हमारी जात में शादी करनी का है. अरे भाई मेरे को जात का नहीं देखने का, मेरे को डिवोटी देखने का है. यार कोई डिवोटी वोटी कुछ नहीं, हमारी जात में शादी होगी तुम्हारी, अग्रवालों में ही शादी करेंगे हम तुम्हारी. फाइनली फोर्स करके ये ले गए एक लड़की के पास दिखाने के लिए. तो उसने बोला देख, लड़की को बोला देख मैं तेरे को साफ साफ बता रहा हूँ, मैं तेरे से कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं एक हरे कृष्णा डिवोटी हूँ, मैं ये हनीमून वनीमून कुछ नहीं करने वाला, मैं कुल्लू मनाली वगैरह कहीं नहीं जाऊँगा, मैं मायापुर वृंदावन इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता. तो मैं तेरे से छुपा नहीं रहा शादी इस बारे, ताकि तेरे को सब पता हो मेरे बारे. लड़की बोली अगर तू इतना बड़ा पंडित है
तो शादी कर क्यों रहा है? तेरे में दम है ना, अगर जा मंदिर में ब्रह्मचारी बन के दिखा दू। अरे ऐसा कैसे बोल रही हो तू? चैलेंज करती हूँ, आज तेरे से भगोड़े कमजोर लोग आ जाते शादी करने के लिए। दम है तेरे में, दम है तेरे में, है यहाँ आ गया मेरा रिश्ता मांगने के लिए तू? अरे मैं सिर्फ भोग का प्रसादी पाऊंगा, मैं सिर्फ मायापुर वृंदावन ही जाऊंगा, मैं सिर्फ हरे कृष्णा करूंगा, 4 नियम है, मैं हनीमून नहीं जाऊंगा। अब अगर दम है ना फुल टाइम ज्वाइन करके दिखा, चल तू जा। चैलेंज मत कर मेरे को, चैलेंज मत कर मेरे को। देखा चैलेंज करती हूँ, तेरे में जिगरा ही नहीं है, तो कमजोर आदमी है। तब अगले दिन गया फुल टाइम ज्वाइन कर गया वो। एसोसिएशन कैन कम दिस वे, उड़ी बाबा, एसोसिएशन। सो इसलिए एसोसिएशन रियली मैटर्स इन लाइफ। ओके, इफ वी से कैन एन एंट टच द मून, क्या चींटी चांद को छू सकती है? हाँ या ना? है जी? कैसे? एस्केप वेलोसिटी एंड को, उसके लिए इतना कुछ सिंपल। हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको भेजें तो उसके चिथड़े हो जाएंगे वहाँ पर पहुँचते। वेरी सिंपल। इफ एंट इज सिटिंग ऑन द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, अगर चींटी शिव जी के सर पे बैठी हो तो चांद छू सकती है ना आराम से। ये तो पता नहीं कहाँ तुम अपोलो 1, अपोलो 17, अपोलो 21, अबे भाई सिंपल। अगर चींटी शिव जी के सर पे बैठी हो तो छू सकती है, बिकॉज शिव जी का नाम क्या है? चंद्रमौली, चंद्र है ना उनके सर पे, राइट? दैट मीन्स इवन दो विच कैन नॉट बी accomplished by anyone in ordinary circumstances, but by devotees association we can accomplish that. So who is there? Lord Shiva is a devotee. तो अगर हमें चाहिए कृष्ण चंद्र को हम छू नहीं सकते, but by the mercy of Lord Shiva that which is impossible can become possible. Yes. तो इस तरह से by devotees association we can do that which we cannot accomplish. एक समय नारद मुनि ने सोचा, एक समय उन्होंने पढ़ा कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये क्या होता है लव मात्र साधु संग? व्हाट इज दिस? कि अ मोमेंटफुल एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी, उससे सिद्धि हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगा? हाउ कम? तो भगवान नारायण के पास गए, नारायण। भगवान नारायण ने कहा, हाँ बताओ नारद क्या हुआ? कहता, प्रभु मैंने सुना था ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ये लव मात्र साधु संग की भला क्या महत्ता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लव मात्र साधु संग? तो भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, हैदराबाद में जाओ, फला जगह पर ना एक गमला है एक घर में, उस गमले के नीचे एक केचुआ है, देयर इज अर्थवॉर्म, यू आस्क दैट अर्थवॉर्म। ओके, तो अपना जीपीएस लगा करके पहुंच गए वहाँ पर, पहुँचे, गमला हटाए, नीचे केचुआ था। कहता है, केचुए भैया जी लव मात्र साधु संग करो तो उससे क्या होता है? केचुए नारद मुनि को देखा और मर गया। नारद मुनि ने सोचा, भाई बड़ा डेडली सवाल है ये तो, बंदे की जान निकाल दे तो आए वापस, कहते नारायण। अरे कहते प्रभु ये तो बड़ा डेंजरस सवाल है, मैंने केचुए से पूछा, केचुआ तो मर गया। भगवान ने कहा, ओह अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, फला गौशाला में ना एक बछड़ा है, बछड़े से पूछो। कहते प्रभु ये तो नहीं मरेगा ना, नहीं तो गौ हत्या का पाप लगेगा मेरे को। जाओ पूछो। ना मुनि पहुंचते बछड़े के पास, कहते बछड़े भैया लव मात्र साधु संग करो, भला क्या लाभ होता है इसका? बछड़े नारद मुनि को देखा, मर गया। भाई ये तो बड़ा किलर सवाल है ये तो, भाई अर्थवॉर्म भी मर गया, गाय का बछड़ा ही मर गया, तो बहुत डेंजरस है ये तो। फिर से आए, नारायण। कहता प्रभु आप ही जवाब दे दो ना, ये क्यों यहाँ भेज करके लोगों का मर्डर करवा रहे हो मेरे से आप? 2 लोग मार चुका हूँ मैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक फला एक ना राज ऋषियों के यहाँ पर एक राजकुमार पैदा हुआ है, उस राजकुमार से जाकर के पूछो। कहता प्रभु, भगवान ने कहा जाओ। ठीक है प्रभु। तो फिर नारद मुनि पहुंचे उस राजकुमार के पास। राजकुमार नारायण। कहता हाँ नारद मुनि, नारायण हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? अब क्या पूछूं? कहते कोई नहीं, आप सवाल पूछने आए हो कुछ? कहता हाँ, तुमको कैसे पता चला? कहता पूछिए। कहता अरे चिंता मत करिए, मैं नहीं मरूंगा। कहता अरे इसको तो यही पता है। कहता है राजकुमार
कि लव मात्र साधु संग करने का क्या लाभ होता है। लेकिन देखा राजकुमार नहीं मरा। कहता है आप सही सोचे ना कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब एक केचुए को आपका लव मात्र साधु संग मिला तो उसको बछड़े का शरीर मिला, और जब बछड़े को लव मात्र साधु संग मिला आपका, तो मुझको राजकुमार के रूप में अब शरीर मिला। अब मैं जन्म में भजन करके भगवान के धाम चला जाऊँ। ये है महत्व इवन लव मात्र साधु संग का। तो इसलिए मोमेंट फुल ऑफ एसोसिएशन, लाइक श्री प्रभुपाद वंस ही वाज ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट में थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल को बोला, कैन यू गिव मी समथिंग हॉट। अब वो तो मंदिर से प्रसाद लेके आया था, लेकिन मंदिर का प्रसाद तो ठंडा था, गरम गरम प्रसाद चाहिए, तो क्या करें गरम प्रसाद के लिए। तो उसने एयर होस्टेस बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मैम कैन आई गेट समथिंग हॉट। उसने कहा वेल हॉट तो और कुछ नहीं है, बट आई कैन मेक सम पॉपकॉर्न्स। अच्छा पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न लेकर आ जाइए। तो पॉपकॉर्न लेकर के आए, और पॉपकॉर्न जो है फिर श्री प्रभुपाद जी को दिए। प्रभुपाद जी ने पॉपकॉर्न खाए, थोड़े जो उनका महाप्रसाद था वो सेक्रेटरी ने खाया। उसके बाद फिर सेक्रेटरी ने क्या किया, जो महाप्रसाद था, महाप्रसाद जो था, वो एयर होस्टेस बोला कि दिस इज स्पेशल ब्लेसिंग, यू कैन टेक इट। उसके बाद इस एयर होस्टेस ने ये प्रसाद पाया, महाप्रसाद ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो दिस वाज द ईयर 1976। अब इसके हम 10 साल और आगे आते हैं, विच इज़ 1986। 1986 में देवर फ्यू डिवोटीज, दे वर ट्रैवलिंग इन अमेजॉन जंगल्स। अब रात का समय हो रहा था, उनको लगा यहाँ पर कुछ होटल मोटल कुछ मिल जाए तो वहाँ रुक जाए। सो देयर वाज वन प्लेस, उनको एक घर नजर आया, नॉक किया, वन लेडी केम आउट इन साड़ी, वियरिंग तिलक, चैंटिंग हरे कृष्णा, और दीवार पे तस्वीर थी श्रील प्रभुपाद जी की। अरे जंगल में मंगल, अमेज़न के जंगल में ये ऐसा कैसे हो गया है? आर यू हरे कृष्णा डिवोटी? यस आई एम अ हरे कृष्णा डिवोटी। हाउ कम यू बिकम हरे कृष्णा डिवोटी? शी सेड 10 years ago आई वॉज एयर होस्टेस, और मैंने स्वामी श्री प्रभुपाद जी को पॉपकॉर्न खिलाए थे एयर फ्लाइट में, और तब उनका मैंने महाप्रसाद पाया था। उसका रिजल्ट ये हुआ दैट आई स्टार्टेड चैंटिंग फ्रॉम देयर ऑन, एंड इट्स बीन नाउ 10 years आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। एंड समटाइम्स आई कम टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर, but this property I have converted completely into temple, so you can come in, I will feed you prasadam। और वो डिवोटीज अमेज़न के जंगल में जहाँ सोचते थे कुछ रहने की जगह मिल जाए, वहाँ पर डिवोटी एसोसिएशन, प्रसादम, दर्शन, वाओ। So how can an association of the devotee can transform to such an extent? Such an extent. In fact, there was one guy, he was an undertaker. आप देखा अंडरटेकर, WWE वाला, बाल लंबे चौड़े है ना, 7'1" हाइट है उसकी। ट्रम्प कार्ड सबने खेले हैं ना, सो 7'1" हाइट वाला ट्रम्प, वो वाला अंडरटेकर की बात नहीं करना मैं। अंडरटेकर ना एक्चुअली प्रोफेशन है। क्या प्रोफेशन है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो मर जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसकी बॉडी में जो जितना ब्लड है उसको सेल्यूलॉइड बना देते हैं, मतलब जेल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। और जब बंदा मरता है तो उदास होता है उसको, तो उसको सिल देते हैं, सो दैट देयर इज अ स्माइल, एज इफ खुशी खुशी मरा है वो, तो ऐसी फील देने के लिए लोगों को। तो इट्स अ प्रोफेशन एक्चुअली। तो ये वेदी थी, और उस वेदी पे डेड बॉडी लिटाता था, इंजेक्शन केमिकल से मार करके सारी बॉडी को जेल में कन्वर्ट किया, ताकि सिलाई विलाई करे तो खूब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर सिलाई करेगा उसकी यहाँ पर, एज ए बंदा खुशी खुशी मर के गया। So this person, he just once heard some devotees doing नाम संकीर्तन, devotees were doing नाम संकीर्तन, उसने devotees हाँ नाम संकीर्तन थोड़ा ऐसे कर लिया, and that's it. So one devotee gave one book to him. उसने वो बुक पढ़ी, बुक पढ़ करके he became so transformed कि उसने वो प्रोफेशन बंद कर दिया, और स्पेशली फ्लाई करके इंडिया आया। इंडिया से गंगा और यमुना और सरस्वती का जल इकट्ठा किया उसने, और जल लेकर के उसने वेदी को साफ किया, और उस वेदी पे राधा कृष्ण के विग्रह इंस्टॉल किया। एंड देन ही स्टार्टेड वन सेंटर एट दैट प्लेस। जिस जगह पे डेड बॉडीज लिटा करके उनकी सिलाई बुनाई हुआ करती थी,
उस जगह पे द पर्सन बिकेम डिवोटी, मेड अ सेंटर, दैट वेदी वेयर एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन आर नाउ deities of Radha and Krishna and gone Nitai. Such transformation happens by devotees association. Yes. And when we come to devotees association, then you see we are always reminded of the purpose. अगर जितने आप में यूथ है, when you go to college, office, जाते हैं ना, भक्ति धूमिल पड़ जाती है. Again when you come for Sangha, बैटरी चार्ज मैन, यस आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये कुछ यहाँ फिर से बैटरी डाउन होते 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 लगता है नहीं यार वो लैला है, मैं मजनू हूँ. ठीक है, फिर जब मंदिर आया, आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, यस, फिर गया बाहर होते होते फिर. So as soon as we come to sadhu sangha, we are uplifted in our spirit. We are reminded of the purpose that I belong to Krishna. Yes. So we should regularly associate with devotees. In fact, we should adjust our lives, priorities in a way that we are in devotee association. मेरी पहली जो नौकरी थी वो थी 25,000 रुपए की, पर उसी वक्त मेरे को एक और नौकरी मिल रही थी somewhere in UP where there was no sadhu sangha, पर वहाँ सैलरी मिली थी मेरे को 55,000. So one option is 25,000 with devotee association, और दूसरी ऑप्शन थी 55,000 की सैलरी विद नो डिवोटी एसोसिएशन. मैंने कहा यार ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑफर है. फिर मैंने डिवोटी से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी क्या करना चाहिए. डिवोटी ने बोला, अरे प्रभु जब भक्ति नहीं रहेगी ना 55,000 तुमको लेके डूबेंगे बेटे लाल. सो यू शुड ऑलवेज हैव डिवोटी एसोसिएशन. सो देन आई चोज 25,000 वाली जॉब, सेड नो टू 55,000 वाली जॉब, एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट चॉइस. That we should actually go for a job also in a way, a college in a way that we have more devotees association, sadhu sangha. तो जिस तरह साधु संघ में रहेंगे चैंटिंग चलेगी, साधु संघ में रहेंगे 4 नियम चलेंगे, साधु संघ में रहेंगे तो भक्ति चलती रहेगी, साधु संघ से हटेंगे खलास, कुछ नहीं बचता. So that's why I request all of you that all of you are very fortunate under the guidance of Radheshyam Prabhuji here. There are such wonderful leaders, youth leaders who are helping you, guiding you. It's so good. तो इसीलिए भक्तों के संग में रहिए यहाँ पर. विष्णु प्रसाद प्रभु सब जानते हैं विष्णु प्रसाद प्रभु को? Nice. And अच्युत गोपाल प्रभु, right? अच्युत गोपाल प्रभु सब जानते हैं? So we are such nice youth leaders here. Yeah. Tarun Mohan Prabhu is also here. तो बढ़िया बढ़िया इतने सारे यूथ डिवोटीज हैं आपको गाइड करने के लिए, और क्या चाहिए. तो इसलिए हाँ, महाप्रभु चैतन्य प्रभु इज ऑल्सो हियर. हरि बोल. वैष्णव चरणदास प्रभु इज ऑल्सो हियर. हरि बोल. और पीछे प्रभु जी का नाम क्या है? समर्थ कृष्ण प्रभु. समर्थ कृष्ण प्रभु इज ऑल्सो देयर. So you are so nicely protected and guided by these devotees, right? So all of you are very fortunate. There are many such places जहाँ पर कि एक डिवोटी नहीं है साधु संग देने के लिए, एक डिवोटी भी नहीं है. यहाँ पर इतने सारे डिवोटीज की बौछार है. So take full advantage of this devotee association. Thank you very much. Hare Krishna.